A long, long time ago, man used his fingers or markings on bones for counting, and later devised various symbols or figures for each number. While in those times, man normally counted the animals he killed and ate. Several thousand years later, man is still counting, although mostly money. You will not be able to hear me for a while. I just want you to watch the presentation. Before we start with integers, let us first discuss why did integers were required and where did they come from. I can see the students raising their hands. Anand and Sia, I'm not sure if you can hear me. I think it should be audible to everyone. You can lower your hands for a moment. If you have a question, please type it in the chat box. Damandeep, Anhad, Ryan, I have read your message. I will. Okay. Okay. So here they are saying that man has been counting since early times. Even now we are counting. So the numbers that we use for counting, they are called as natural numbers. All those numbers which we use for counting, they are called natural numbers. Well, you may be rich one day, but there are days when you are flat broke with no money left. So when it comes to describing the notion of nothing, a number 0 was discovered. Now, if you are using counting numbers, अगर आप सिर्फ counting कर रहे हो, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. But if you want to represent nothing, then you need 0. So जब हम 0 को लिस्ट के साथ कंबाइन करते हैं, अपनी काउंटिंग नंबर्स के साथ 0 को कंबाइन कर लें लिस्ट में, तो वो जो न्यू लिस्ट बनती है उस लिस्ट को हम बोलते हैं होल नंबर्स. The collection of natural numbers and 0 is called whole numbers. Remember कि natural numbers की collection किन से बनी है? आपके counting numbers से बनी है. अगर आपके पास सिर्फ काउंटिंग नंबर की कलेक्शन हो, वो 1 से शुरू होती है, तो उस कलेक्शन को आप नेचुरल नंबर्स बोलते हो. और उस कलेक्शन के साथ अगर आपके पास 0 भी हो, 0 के बाद काउंटिंग नंबर्स की कलेक्शन हम ले लें, तो वो जो न्यू लिस्ट बनेगी उस कलेक्शन को हम बोलेंगे होल नंबर्स. For example, when you have to measure the depth of a ship below sea level, when the temperature drops to sub-zero under very chilly conditions, and of course, when you owe money to the bank. Now there are certain situations जहां पे हमारा काम whole number से नहीं चलता. For example, अगर आपको शो करना है सी लेवल से बिलो का डिस्टेंस, या फिर आपको शो करना हो टेम्परेचर 0 से नीचे, तो हमें फिर कौन से नंबर्स की जरूरत पड़ती है? नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है. और नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? इफ यू पुट माइनस साइन विद योर काउंटिंग वैल्यूज, आपकी जो काउंटिंग वाली वैल्यूज हैं बस उनके आगे एक माइनस का साइन लगा दो और वो आपके क्या बन जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स. If you put together all your counting numbers, all your negative numbers and 0 together, you are making a collection जिसमें आपके पास counting वाले numbers हैं. Counting means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so on चलती जा रही है, खत्म नहीं होती. उन सारी काउंटिंग वैल्यूज के साथ हम माइनस लगा लेंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे. तो -1, -2, -3, -4, ये भी एंडलेस लिस्ट होगी. ये वाली 2 काउंटिंग वाली लिस्ट आपको कलेक्ट करनी है,
साथ में 0 को कलेक्ट करना है। इस नई कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। And these can be shown on the number line. If you want to show the integers on the number line, what we do is हम line draw करते हैं, equal parts create करते हैं, बीच में कहीं पे आपके पास 0 होगा। जैसे जैसे आप right side जाते हो, I hope everyone knows which side is right, the hand you write with, right side। तो उस तरफ जैसे आप जाओगे तो काउंटिंग इंक्रीज होती है और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। Whereas अगर आप 0 से पीछे जाते हो, जितना पीछे जाते जाओगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। सो 0 से अगर आप 1 स्टेप लेफ्ट जाते हो, just observe, if you move 1 step left from 0 you get -1। अगर आप जाते हो 2 steps away, if you jump 2 steps back from 2, the answer is -2। if you go back 3 steps away, so 1 2 3, आप जितना पीछे जाते हो नंबर आएगा डिपेंडिंग ऑन हम कितना पीछे गए हैं। 2 steps away the number will be 2 but the sign will be minus। अगर हम 3 steps पीछे जा रहे हैं the number will be 3 but the sign will be minus। अगर आप 10 steps 0 से पीछे चले गए the answer will be -10। और हम जितना पीछे जाएंगे 0 से उतना ही हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। Just a minute, Rishit, I will be taking up your questions. Then 0 we consider like the center, 0 we consider like the center, और हमारी जो नंबर लाइन है वो दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है। हम डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन छोटी सी ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप इसको जितना मर्जी बड़ा ड्रॉ कर सकते हो। और जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या है? ऑपोजिट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं आप उनके साथ माइनस लगा देते हो तो नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं हम उनको। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज द ऑपोजिट्स ऑफ योर negative, sorry, the counting numbers and the negative numbers, they are called opposites of each other. Now when you want to compare two integers, simply think of those two integers on the number line। number line के ऊपर आप imagine करो कि जो integers आप compare कर रहे हो वो कहाँ कहाँ पे होंगे। Right now, as you can see in this picture, आपके पास दो integers हैं, -14 and 5। Number line के ऊपर अगर आप ये दोनों, Ashit, yes, your answer, your question is yes, it's right. That's what I have written. I will get back to your questions. Just wait. It will take another minute or so. Then I'll take up your questions. So if you have two integers to be compared, just think of them on the number line. Number line पे अगर आप -14 और 5 को imagine करो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर दिखेगा और राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर दिखेगा? 5 will appear to the right side, -14 will be on the left side। the one which is on the right side, नंबर लाइन की बात कर रही हूं, नंबर लाइन के ऊपर देखना है, वहां क्वेश्चन में नहीं देखना कि राइट पे कौन सा लिखा हुआ है। लुक एट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 5 will be on the right side, so it will be bigger, irrespective of the value। 14 को देख के नहीं बोल देना 14 बड़ा है, माइनस लगा हुआ है उसके साथ, it will be on the left, so it will be smaller। Okay, before we continue from here, let's just go back to the definitions। Now those students who have a doubt, please raise your hand. I will be one by one asking you to unmute and you can ask। Okay, let's start with Ananya. Unmute। Ma'am, if we take negative integers,
why 14 minus 14 is smaller than -1? थिंक ऑफ इट के जैसे जैसे हम 0 से नीचे जाते हैं वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो -14 बहुत नीचे जाके मिलेगा आपको। आप जितना 0 से दूर जाते हो वैल्यू उतनी स्मॉल होती जाएगी। अगर आप सपोज टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 से 1 डिग्री लेस विल बी -1 और 0 से 14 डिग्रीज लेस विल बी -14। नाउ यू टेल मी कहां पे ज्यादा ठंड होगी? -1 पे ज्यादा ठंड होगी कि -14 पे ज्यादा ठंड होगी? द लेसर दैट, नो, -14 पे ज्यादा कोल्ड होगा, बिकॉज हम 0 से बहुत नीचे चले गए हैं। हम 0 से जितना पीछे जाएंगे उतनी वैल्यूज कम होती हैं। ऋषित, Ma'am, like in whole numbers we say half, 2 and half. Ma'am, in negative numbers how we will say -1/2. you will say -1/2, depends on your numerator and denominator. अभी हम फ्रैक्शंस के साथ काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपल नंबर्स के साथ काम करेंगे विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अभी फ्रैक्शंस नहीं आएंगी, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। वो रैशनल नंबर्स वाला चैप्टर है जहां पे आपके पास फ्रैक्शंस के साथ माइनस लगा हो सकता है। Okay, ma'am. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी काउंटिंग के साथ माइनस के साइंस लगा दें, what happens then? How do we work with those numbers? सिर्फ काउंटिंग, नो फ्रैक्शंस। अनहद, Ma'am, can I leave 2 pages because I don't done the definition? beta, you don't check the group, that means you have to check what I send मैम as आज well. मैं अभी मैंने चेक किया कि हमने भेजा। Okay, you can note it down afterwards. ओके मैम। Sia, मैम जब आपने प्रेजेंटेशन की सेकंड स्लाइड दिखाई थी मैम, उसमें लिखा, मैम राइट साइड में लिखा था कि होल नंबर्स आर इनफाइनाइट। मैम नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं? yes. As I said, हम 0 से अगर 1 स्टेप पीछे जाएंगे it will be -1. हम 0 से 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे it will be -2. Imagine मैं 0 से कितनी दूर जा सकती हूँ? 100 स्टेप्स। कोई 101 स्टेप्स पीछे चला जाएगा, फिर कोई 103 स्टेप्स पीछे चला जाएगा। आप कितना लार्जेस्ट नंबर सोच सकते हो, कितनी दूर जा सकते हैं? 1 लाख बोलोगे, कोई कहेगा 1,01,000, 1 करोड़, 1 करोड़ 1, दे विल ऑलवेज बी 1 स्टेप बैक। तो वो काउंटलेस है, वो चलता जाएगा। यू कैन ऑलवेज गो 1 स्टेप बैक। ओके मैम। सेम वे इंक्रीज करना है तो आप 1 इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, यू कैन इंक्रीज 1। मैम अगर जैसे कि मैम प्लस माइनस माइनस होता है तो मैम हमने बिगर नंबर देखना होता है कि जो सा बिगर नंबर है उसका ही ऑपरेशन लगेगा? Now there is this confusion between how you speak about it. There are two kinds of minus things you're talking about. एक होता है कि जब हम addition या subtraction perform कर रहे हैं तब क्या करना है, वो rule different होगा, ठीक है, वो आपने किया है। Another rule is if you are combining the signs, अगर आपके पास integer है उससे पहले 2 इकट्ठे sign आ रहे हैं तो क्या करना है? I will come to that. मैं अभी डिस्कस करती हूँ। I think it will be better that if I discuss and then you may ask. गुरशान कौर, बेटा -2 is smaller. अब 0 से जितना दूर हो लेफ्ट की तरफ उतनी छोटी वैल्यू होगी। नंबर लाइन पे -1 -2 है, -2 is on the left, so -2 is smaller, -1 is on the right, it will be bigger. Angad Meet. Yes, ma'am. Beta, you have a question? Ma'am, yes, ma'am. Go ahead, ask. Ma'am, if there is -14 and -14, ma'am, then which one is the bigger? You are saying -14 and -14. Yes, ma'am.
They will be equal. They are the same numbers. Okay, ma'am. If one of them is 0. Ma'am, minus 14 and minus 15, ma'am, then minus 15 is smaller. Yes, this is smaller. Okay, ma'am. Manmeet. Excuse me, ma'am. Yes, Manmeet. Ma'am, we will start next lesson. Yes. Ma'am, okay, ma'am, because I am joining late. Okay. Garish. Is Garish in the meeting? Yes, Hargun. Okay. Now let's talk about how we work with the comparison quickly. एक बार रिवाइज करना है आप सभी ने मेरे साथ. जब भी आपने इंटीजर्स को कंपेयर करना है, whenever you want to compare integers, जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इंटीजर्स बिगर होते जाएंगे. एंड जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाते हो वैसे इंटीजर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. कीपिंग दिस इन माइंड, अगर आप नंबर लाइन के ऊपर चेक करो, बिकॉज सेंटर में यहाँ पे 0 होगा, राइट पे आपके पास काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, तो काउंटिंग नंबर्स की अगर आप बात करो उनमें से सबसे छोटा काउंटिंग नंबर आपका है 1 और सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर, क्योंकि राइट साइड पे मिलना है और उधर तो कोई एंड ही नहीं है, इट इज गोइंग ऑन इनफाइनाइटली, देयरफॉर okay Tanvi, okay, I'll try to help you out with that. If you have counting numbers on the right side of 0, तो उस counting numbers की list में आपके पास सबसे छोटा जो counting number है वो 1 है. And counting numbers को हम क्या बोलते हैं? Positive integers बोलते हैं. Positive integers में से सबसे छोटा है 1. Can you find out the largest positive integer? That means you want to find out the largest counting number. Can you find out the largest counting number? No, that's right. हम largest counting number नहीं find कर सकते. That means हम largest positive integer find नहीं कर सकते. अगर हम बात करें negative integers की, तो नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जस्ट लुक एट द नंबर लाइन, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो वो वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं. सो सबसे पहला जो नेगेटिव नंबर हमें मिलता है दैट इज द लार्जेस्ट. यस, उससे हम दूर जाएंगे इट बिकम्स स्मॉलर और स्मॉलर होता जाएगा. देन और लेफ्ट पे चले गए और छोटा हो गया. जितना जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे आपकी वैल्यूज उतनी छोटी होती जाएंगी. सो -1 उन सभी में से लार्जेस्ट है. -1 के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज छोटी हैं.
-2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा. Another way to understand this, all those who have like problem with this part of the integers, okay, how the negative numbers are smaller when we decrease their values. Observe this. Rishit and Manmeet, give me 1 minute. I'm coming back to your question. Think of your number line like this. इस तरह से imagine करो अपनी number line को. Vertically. Think of your number line vertically. तो आपके पास इस vertical number line पे. Yes, Gurshan, you're right. बीच में कहीं पे 0 है. जैसे जैसे आप upwards जाओगे, आपकी values increase होनी है. एक step ऊपर गए 1 आ गया. 2 steps 2, then 3, then 4, और जैसे आप नीचे जाओगे downwards, एक step below -1, 2 steps -2, -3, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे we are going towards smaller numbers. ऊपर जाओगे bigger numbers. I request all the students to ask a question related to what we are doing. Okay, Tanveen. Rishit. Ma'am, we cannot find the smallest negative integer and the biggest positive integer. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, the 0 is not bigger than the smallest negative. Yes, 0 is neither positive nor negative. Okay, आप ma'am. It चाहे means, if you write +0, if you write -0, both are the same. ma'am, it means 1 is the smallest positive integer and the -1 is the biggest negative integer. That's right. Okay, ma'am. Anhad. Ma'am, your voice is not audible. Beta, reconnect. If you're having trouble at your end, try to reconnect. That's why you cannot hear me. Manmeet. Yes. Excuse me, ma'am. -1 or 1. -1 is bigger or smaller? -1 is bigger. -1 से नीचे जाओगे तो वैल्यू छोटी होगी. Okay. मैम जो 1 है only 1 वो small है. पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ काउंटिंग अगर आप चेक करते हो अपनी, सिर्फ काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से 0 से. काउंटिंग 0 से कहाँ स्टार्ट होती है? 1 से. हाँ, 1 से शुरू होती है. काउंटिंग में 1 सबसे छोटा होता है. ओके रेयान. Sia, yes. I think one of the students is asking about comparison again. मैंने examples लिखवाई हैं 2 आपको, right? So हर्षीन बेटा मैं उसी पे आ रही हूँ. ऋषित. Ma'am, if we compare positive 1 and 0, 1 will be bigger, and -1 and 0, which will be bigger? If you are comparing, -1 and 0. 0 will be bigger. Okay, ma'am.
Now, if you are comparing integers, keep that in mind. Just simple सा rule है, आपने जब भी integers को compare करना है, दोनों integers को number line पे imagine कर लो. Imagine them on the number line. Number line पे अगर आप उनको mark करते हो, जो left पे mark होगा, वो smaller होगा, जो right पे mark करोगे आप, वो bigger होगा. I will give you one example here. Let us say you have to compare -5 and you have to compare -2. तो आप नंबर लाइन बनाते हो, बीच में 0 आता है, राइट पे आपके पास 1 2 3 आने हैं, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 आ रहा है. अब आप चेक करो, आपने दो नंबर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, -5 ये रहा और -2 ये रहा. जो लेफ्ट पे नजर आएगा वो आपका स्मॉलर नंबर होगा. एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर कंपेयरिंग, आपको नंबर लाइन बनानी नहीं है, आप इमेजिन भी कर सकते हो. आप इमेजिन भी कर सकते हो ऑन द नंबर लाइन विच ऑफ द टू विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. इफ आई आस्क यू अबाउट दिस, हर्षीन बेटा आप इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे मुझे, थर्ड रूल के बारे में, यहाँ पे कि आउट ऑफ द टू इंटीजर्स इफ यू आर शोइंग, if you want to compare -11 and -2, नंबर लाइन के ऊपर 0 के आप लेफ्ट पे जाओगे, पहले -2 आएगा और दूर चले जाओगे -11 आएगा. आप बताओ कौन सा स्मॉलर है? जो लेफ्ट पे है. राइट. पार्थ बेटा, I'll just ask you to unmute and you can ask. मैम. हाँ जी बेटा. मैम जैसे मैम नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर को मैम इंटीजर्स कहते हैं और मैम पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स. ओके मैम. Rules for addition and subtraction. If you are performing addition and subtraction of two integers, आपने last year सिर्फ addition subtraction की है. This year we will be doing multiplication and division as well. So if you are performing addition and subtraction of two integers, तो सिर्फ इतना रूल याद रखना है, if your integers are of the same sign, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है दोनों का, ऐड करना है उनको. अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का सेम साइन है, तब भी उनको ऐड करना है. बट if they are of the opposite signs, one of them is positive, other one is negative, तो हम करेंगे subtraction and the answer will have the sign of larger number. Angad? Yes, ma'am. Beta, you've raised your hand. Do you have a question? Yes, ma'am. Ma'am, what is the difference between natural numbers, whole numbers, and negative integers? Your natural numbers are only your counting numbers. They start from 1. उनमें 0 नहीं होता. 1 2 3 so on. आपके काउंटिंग है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. बट प्रॉब्लम आती है व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट नथिंग. अगर आपको लिखना हो, इफ आई से देयर वाज नो स्टूडेंट एब्सेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट विल बी इक्वल टू 0. बट ये 0 जो आता है, ये काउंटिंग वाली लिस्ट में मेंशन्ड कहीं पे भी नहीं है. दिस इज मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ होल नंबर्स. It's only a different name given to the collection just to have a difference. Distinguish करने के लिए उसको नाम दिया हुआ है. अगर आप सिर्फ काउंटिंग लिस्ट करते हो, काउंटिंग लिखते हो, उसको नेचुरल नंबर्स बोलना है. उस काउंटिंग से पहले अगर आप 0 लिख देते हो, उसको आप होल नंबर्स बोलते हो. उस लिस्ट के साथ अगर आप अपने नेगेटिव इंटीजर्स लिख देते हो, वो जो पूरी लिस्ट बन जाएगी. नेगेटिव इंटीजर्स हैं, फिर 0 है, फिर काउंटिंग आ रही है, वो जो नई कलेक्शन है, इट इज कॉल्ड इंटीजर्स. Okay, ma'am. Once you have done this, ये जो addition subtraction के rules हैं, while we do the questions हम दोबारा discuss करेंगे. If we are having an integer before which
देयर आर टू साइंस. अब आप ऐसे सोचो, आपके पास प्लस है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, फिर +5 लिखा हुआ है. इफ यू रिमूव द ब्रैकेट, if you remove the bracket, it will look like this. So plus plus appear together. इसका जो रिजल्ट आएगा, प्लस एंड प्लस टुगेदर, इसका रिजल्ट आपके पास प्लस आएगा. दिस इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंस. अभी हमने प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया. अगर आपके क्वेश्चन में दो साइंस इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं, हाउ डू यू कंबाइन देम? If you have two plus signs appearing together, the resulting sign will be plus. If you have plus and minus appearing together, the resulting sign with the number 5 तो ऐसे ही रहेगा. प्लस और माइनस कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? माइनस बन जाएंगे. सेम वे इफ यू हैव माइनस एंड प्लस appearing together, तो ये बन जाएगा -5. एंड इफ यू हैव माइनस एंड माइनस appearing together, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? +5. ओके अनन्या? गुरशान, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ये सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है. नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. I did say that when we do questions, I will explain again. Rishit? मैम लाइक दी साइंस, मैम आप एक बार स्क्रॉल करोगे ऊपर? मैम जो टेबल जहाँ, मैम देखो इसमें लिखा है कि प्लस 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 इक्वल्स टू आंसर साइन प्लस, माइनस माइनस माइनस. You are missing this column. ये कॉलम क्यों स्किप कर रहे हो बीच में से? मैम तो फिर वो आंसर साइन में ऐसे क्यों आएंगे प्लस माइनस? आंसर के साथ, आंसर साइन मींस आंसर के साथ आप कौन सा साइन लगाओगे? अगर आपके पास फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है, +5 है, फिर उसके साथ +12 है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे? 5 को और 12 को ऐड कर दो. What will be the answer? 17? 17. इसके साथ क्या लगेगा आगे? प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? प्लस. आंसर के साथ प्लस लगेगा. नाउ चेक इफ बोथ वर माइनस. 5 के आगे भी माइनस होता, 12 के आगे भी माइनस होता, तब भी इन दोनों को आपको क्या करना था? ऐड करना था. आंसर आपका आना था 17, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा? अब माइनस साइन. माइनस. लेकिन नाउ कंसिडर दिस सिनेरियो, 5 प्लस का हो, 12 माइनस का हो, या फिर 5 माइनस का हो, 12 प्लस का हो. अब ऑपोजिट साइन है इनके. जब ऑपोजिट साइन है तो नंबर्स की करनी है सब्ट्रैक्शन. तो 5 और 12 की करो